मैं आप सभी का इस नए एकेडमिक ईयर में इस्तकबाल करती हूँ। वैसे इस ईयर की शुरुआत रिवायती अंदाज में नहीं हुई है, कोई बात नहीं। वक्त और हालात के हिसाब से हमें अपने आप को एडजस्ट करने आना चाहिए, हमें अपने आप को ढालने आना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, this year also I am going to teach you science second only. And just see, this is your textbook, and this year we have to study total 10 lessons. Number 1 is heredity and evolution. Second, life processes in living organism part 1 and part 2. Then fourth one is environmental management. Fifth one is towards green energy. Sixth is animal classification. 7, introduction to microbiology. Cell biology and biotechnology is 8th one. Social health 9th. And the last lesson, lesson number 10, is disaster management. So dear student, we'll start our first lesson, and that is heredity and evolution. In this lesson, we have to study subtopics. First of all, what is heredity and hereditary changes, then transcription, translation and translocation, evolution, evidences of evolution. Then we have to study Darwin's theory of natural selection, and in that connection, Lamarckism, then speciation and human evolution. So let us start our lesson. The very first part of it is about heredity and hereditary changes. First, we will see what heredity is. What heredity is. So dear student, this heredity is not a new word for you. You have studied this last year. याद आ रहा है heredity? But one more word we have to add in this, inheritance. तो अब ये क्या है? Anybody remember the definition? Last year also the definition was given. ठीक है, चलिए मैं ही बता देती हूँ. Heredity is nothing but the process of transfer of biological characters from one generation to another. तो एक चीज समझ में आ रही है कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, अनदर जनरेशन, एंड दिस इज नथिंग बट द हेरिडिटी. और इसके जो पायनियर थे, जो बुनियादी बातें जिन्होंने बताई थी, वो हैं, डू यू रिमेंबर, जॉन ग्रेगर मेंडल. आई थिंक जैसे ही नाम आता है, पी प्लांट आपके तस्वुर में आ रहा है. मैं आपको थोड़ा सा पिछले साल की तरफ ले जा रही हूँ. 9th स्टैंडर्ड में ज़रा याद करें. तो 9th स्टैंडर्ड में आपने इनके बारे में पढ़ा था कि किस तरह से इन्होंने पी प्लांट, इनके पसंदीदा प्लांट्स थे, एक्चुअली वो प्रेजेंट थे उनके एरिया में जहाँ वो रहते थे, और उन्होंने उन प्लांट्स को काफ़ी ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने देखा था कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं. कैरेक्टर्स, अब यहाँ कैरेक्टर्स के लिए एक पर्टिकुलर टर्म इस्तेमाल होने जा रहा है, ट्रेट. तो ये कौन से ट्रेट्स, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र होते हैं, उसी से रिलेटेड हमने कुछ चीज़ें भी देखी थी. जैसे मिसाल के तौर पर, इफ़ मदर्स आइज आर ब्लू एंड फादर्स आइज आर ब्लैक, what is the possibility, what is the probability of the transfer of the eyes color in next generation. बच्चों में कौन सा कलर आएगा, ब्लू आएगा या ब्लैक आएगा. उसके ताल्लुक से पूरा जो एक ख़ास प्रोसेस था वो हमने स्टडी किया था. तो ये मेंडल जो हैं, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं. लेकिन टू कंक्लूड हिज रिसर्च वर्क, he required a long period, and in 1886 he concluded his research. Then after that
in 1901, reason behind sudden changes were understood by the theory known as mutational theory, and it was put forth by Hugo D. Rice. उसके बाद में ये म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जो है सडन चेंज, अचानक से कुछ चेंजेस हो जाते हैं, कुछ वजूहात है. वी विल स्टडी दैट, वी विल सी दैट आफ्टरवर्ड. देन इन 1902, Water and Saturn, they observed the paired chromosome in the cells of the grasshopper. grasshopper टिड्डा जानते हो ना, अल्लाह मियाँ का घोड़ा जिसे कहते हैं. तो उसमें उन्होंने पहली बार ग्रास हॉपर के सेल में पहली बार उन्होंने क्रोमोसोम का पता लगाया. और ये जो क्रोमोसोम, दिस वर्ड आल्सो इज नॉट न्यू फॉर यू. लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड अबाउट इट. Not only you have studied chromosome, but the types of the chromosome in detail you have studied. Remember, no? थोड़ा सा वो तमाम याददाश्त को यकजा करो, रिकॉल करो मेमोरीज को. So after this, research started in the direction of finding the nature of the genetic material, and it was proved that the genes are carried via chromosomes. ये जो जीन्स, हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी थी कि जो ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं, बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, ये किसके ज़रिए होते हैं? ये जीन्स के ज़रिए होते हैं. और ये जो जीन्स के ज़रिए जो होते हैं वाया क्रोमोसोम से होते हैं. देन इन 1944, ऑस्टवल्ड एवरी, माइकलिन मैककार्थी एंड कोलिन मैकलियोड, they proved that except viruses, concentrate, except viruses, all living organisms have DNA as a genetic material. तो जितने भी living organisms हैं, they are having DNA as a genetic material except virus. सिर्फ ये वायरस में DNA नहीं पाया जाता. वायरस को छोड़कर तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है. सो द साइंस ऑफ हेरिडिटी इज यूजफुल, वेरी यूजफुल, बट वेयर इट इज यूजफुल? इट इज यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स. लास्ट ईयर यू हैव स्टडीड दिस वर्ड. दिस वर्ड इज नॉट न्यू. डिसऑर्डर है ना. तो हेरिडिटरी डिसऑर्डर को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर उसका अगर होने के बाद में ये जो डिसीजेस होते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, डायग्नोसिस के लिए, इन तमाम चीज़ के लिए जो है साइंस ऑफ हेरिडिटी इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट. चलिए अब हम अगला जो पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट, transcription, translation and translocation. No doubt these terminologies are new for you. I will repeat this: transcription, translation and translocation. So first of all, we'll see what is transcription. Synthesis of mRNA as per the nucleotide sequence present on the DNA molecule is called प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. शायद समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इंशाल्लाह थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा व्हेन आई विल एक्सप्लेन दिस. अब यहाँ पर हमने देखा कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये जो है प्रेजेंट रहता है. कहाँ प्रेजेंट रहता है? डीएनए मॉलिक्यूल पर. डीएनए मॉलिक्यूल का ज़रा स्ट्रक्चर जहन में लाओ. क्या रहता है वहाँ पर? एक न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं. और ये न्यूक्लियोटाइड्स ख़ास तरतीब में होते हैं, ख़ास ऑर्डर में होते हैं. दैट ओनली इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस. एंड अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ द दैट न्यूक्लियोटाइड इज नथिंग बट जीन. तो डीएनए पर मौजूद एक ख़ास सेगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है? जीन कहलाता है. एंड अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई. जीन क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. हमारे जिस्म को प्रोटीन की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होते रहती है, और इसके लिए मालूमात चाहिए, उसको इंफॉर्मेशन चाहिए फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द जीन्स.
अब स्टोर्ड इन द जीन्स मीन्स कहाँ पर होगा ये? ऑन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ द डीएनए. सो प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी. मतलब ऐसे ही नहीं तैयार करते कुछ भी प्रोटीन, बल्कि हमारे जिस्म को जिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से प्रोटीन्स तैयार किए जाते हैं. वैसे तो हम प्रोटीन्स बाहर से भी लेते हैं ना. कहाँ कहाँ प्रोटीन पाया जाता है? देखो, बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है. ऑल ऑफ यू नो दिस. तो एक अच्छे जिस्म के लिए, एक सेहतमंद जिस्म के लिए प्रोटीन बेहद ज़रूरी है. दालों से, फिशेस से, अंडे से हमें ये प्रोटीन हासिल होता है. लेकिन ये तो सप्लीमेंट हुआ समझे. लेकिन बेसिकली आवर बॉडी ऑल्सो सिंथेसाइज प्रोटीन्स. So first we are going to study about transcription. What is transcription? Transcription is nothing but the synthesis of appropriate proteins in our body is necessary. Very simple. क्या है ट्रांसक्रिप्शन? प्रोटीन का सिंथेसिस. और वो कौन से प्रोटीन? जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है. इसी को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन. अब और एक जो है वो टेक्निकल वर्ड आता है सेंट्रल डॉग्मा. सो व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? इट इज़ नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू द आरएनए इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा. आमतौर पर इसकी डेफिनेशन अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है. व्हाट इज सेंट्रल डॉग्मा? इट इज़ नथिंग बट द सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन्स बाय डीएनए. प्रोटीन की सिंथेसिस किसके ज़रिए? डीएनए के ज़रिए, लेकिन थ्रू आरएनए. कैसे? थ्रू आरएनए, नॉट थ्रू आरएनए. हाँ, ये बच्चे अक्सर गड़बड़ कर देते हैं. हमारे थ्रू को थ्रो पढ़ते हैं. लिखते तो हैं THROUGH. व्हेन स्पेलिंग इज लाइक दिस, इट इज थ्रू. थ्रो की स्पेलिंग है THROW. मुझे ये बार बार रिमाइंड करना पड़ता है. सो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन बाय डीएनए थ्रू आरएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा. अब देखो, ये जो डायग्राम नजर आ रही है ना, ये सेंट्रल डॉग्मा. इट्स वेरी सिंपल. डीएनए get converted into RNA. So the conversion of the DNA into RNA is known as, this process is known as transcription. And now when RNA get converted into protein, this process is known as translation. यानी हमारे जिस्म में लगने वाला ये जो प्रोटीन है वो तैयार होते रहता है. और ये प्रोटीन कौन तैयार करता है? डीएनए करता है. लेकिन डीएनए अकेले नहीं करता. वो कहता है मुझे मदद की ज़रूरत है. किसकी मदद लेता है वो? आरएनए की मदद लेता है. और आरएनए की मदद से वो प्रोटीन तैयार करता है. और इसी को, ये पूरा जो होल प्रोसेस है, मीन्स कन्वर्शन ऑफ डीएनए इनटू आरएनए, आरएनए इनटू प्रोटीन, इज नोन एज सेंट्रल डॉग्मा. सो इन शॉर्ट, हमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन, इसको अच्छे से समझना है. तो यहाँ जैसे हमने अभी देखा था कि कन्वर्शन होता है डीएनए का आरएनए में, आरएनए का प्रोटीन में. तो इसी को जो है सेंट्रल डॉग्मा कहा जाता है. नाउ फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए नॉट वर्क अलोन. यहाँ पर सब भाई, मतलब मैं अकेला काम नहीं करूँगा ये कहते हैं. तो यहाँ पर आरएनए भी जो है वो बोलता है कि नहीं, आई विल नॉट वर्क अलोन, आई ऑल्सो नीड हेल्प. एंड ही टेक फॉर द हेल्प ही कॉल हिज फ्रेंड्स. और उसके फ्रेंड्स कौन है? उसके टाइप्स हमने देखे थे पिछले 3 साल कौन कौन से उसके टाइप्स हैं. आरएनए के मुख्तलिफ जो टाइप्स हैं वो mRNA मीन्स मैसेंजर आरएनए, tRNA मीन्स ट्रांसफर आरएनए, एंड rRNA मीन्स राइबोसोमल आरएनए. तो ये इनकी मदद से जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है. ये सब मिलकर, ऑल दिस टुगेदर सिंथेसाइज प्रोटीन. और इसी को जो नाम दिए गए हैं प्रोसेसेस, वो कौन कौन से हैं? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. अब हमको तफसील से अगर इसको समझना है कि एक्चुअली ये क्या है, कैसे अंजाम पाता है, सो इट्स वेरी नेसेसरी दैट we should recall the diagram of the cell. The cell is of 2 types, animal cell and plant cell. Here we required animal cell. So just see, this is the diagram of animal cell.
अब थोड़ा सा एक्चुअली ये प्रोटीन कहाँ और कैसे तैयार होता है। एक्चुअली प्रोटीन हमारे जिस्म के हर सेल में तैयार होता है। तो ये सेल की जो है ज़रा डायग्राम देखें। सेल है, सेल का जो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूक्लियस, है ना। इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। जैसे हमारे जिस्म में ब्रेन काम करता है कंट्रोल करने का हमारे तमाम एक्टिविटीज़ को, वैसा सेल के अंदर कौन बहुत पावरफुल होता है, वो होता है न्यूक्लियस। एंड देर आर डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स ऑल्सो। थोड़ा सा हम रिपीट करते हैं इसको ताकि हम बाद में जब उनका नाम लें तो हमारे जहन में पहले से वो मौजूद हों। वो कौन कौन है? राइबोसोम है, साइटोप्लाज्म है, गोल्गी अपैरेटस है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, लाइसोसोम्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वगैरह। तो एक्चुअली जो है ये प्रोटीन तैयार होने का जो प्रोसेस है, अमल है, वो शुरुआत उसकी होती है न्यूक्लियस में। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इट स्टार्ट्स इन न्यूक्लियस, लेकिन फाइनली ये जो काम होता है वो राइबोसोम में होता है। स्टार्ट होता है न्यूक्लियस से और एंड होता है राइबोसोम में। तो चलिए अब हम इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट सी दिस इज़ अ डायग्राम। ब्लू कलर की जो डायग्राम आप लोगों को नज़र आ रही है वो डीएनए की है और रेड कलर की जो डायग्राम नज़र आ रही है वो आरएनए की है। अब एक्चुअली होता क्या है, देखिए ये है डीएनए। डीएनए पर मुख्तलिफ न्यूक्लियोटाइड्स मौजूद हैं। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। आप देख रहे हो एडेनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन, गानाइन वगैरह वगैरह वगैरह। अब क्या होता है, इन न्यूक्लियोटाइड की मदद से जो एमआरएनए है ये खुद के लिए न्यूक्लियोटाइड तैयार करता है। यानी डीएनए पर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड हैं, यू आर गेटिंग मी, डीएनए पर मौजूद जो न्यूक्लियोटाइड है इनकी मदद से एमआरएनए जो है अपने लिए खुद के लिए न्यूक्लियोटाइड्स तैयार करता है। अभी हमने देखा था कि जोड़ियां कैसे बनाते हैं, पेयर्स कैसे बनाते हैं। आमतौर पे एडेनाइन के साथ कौन होता है? थाइमाइन होता है, लेकिन आरएनए में जो है थाइमाइन की बजाय साइटोसिन आ जाता है। तो यहाँ पर ये जोड़ी हम देख रहे हैं किस तरह से जी के साथ जो है साइटोसिन, गानाइन के साथ साइटोसिन, थाइमाइन के साथ एडेनाइन। अब ये थाइमाइन होगा क्या? यूरासिल होगा। तो इस तरह से जो है एमआरएनए में एडेनाइन रहने की वजह से एमआरएनए यूरासिल तैयार करता है। और ये तमाम पेयर्स आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से है। गानाइन के साथ साइटोसिन, जहाँ पर साइटोसिन होगा वहाँ गानाइन आ जाएगा। ये तमाम देख लेंगे, हमें अच्छी तरह से पता है। और इस तरह से एमआरएनए क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड तैयार करता है। और इसी प्रोसेस को, वेरी सिंपल प्रोसेस, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। समझ में आया ना? क्या कहते हैं इसको? ट्रांसक्रिप्शन। इसमें क्या हो रहा है देखिए, डीएनए की मदद से, डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड मौजूद है उसकी मदद से ये जो एमआरएनए है ये अपने लिए अलग से न्यूक्लियोटाइड तैयार करता है। और वो कैसा तैयार करता है? उसके पेयर्स जो है वो तैयार करता है। अब ये देखिए यहाँ पर एक और डायग्राम मैंने बनाई है, ये सेल की डायग्राम है। इसमें ये जो हिस्सा है ये न्यूक्लियस का है और यहाँ पर ये जो नज़र आ रहा है ये है राइबोसोम और इसके अतराफ में जो है वो है साइटोप्लाज्म। अब ये जो एमआरएनए तैयार हो गया है ना, ट्रांसक्रिप्शन में ये तैयार हो गया है, तो ये कहाँ तैयार हुआ था? लेकिन यस, ये न्यूक्लियस में हुआ था। सो ये जो एमआरएनए सिंथेसिस हुआ है ये कहाँ पर हुआ है? इन न्यूक्लियस। नाउ फ्रॉम न्यूक्लियस it comes out, and when it comes out what is there? Cytoplasm. तो वो कहाँ आता है? साइटोप्लाज्म में आ जाता है। When it comes in cytoplasm, it has a specific code. mRNA के पास उसका अपना मखसूस कोड है ना। और ये कोड मतलब इंफॉर्मेशन, it has some information। और ये इंफॉर्मेशन क्या बताता है कि जिस्म को किस टाइप के प्रोटीन की ज़रूरत है। यानी अभी हमको प्रोटीन तैयार करना है और वो प्रोटीन किस टाइप का होगा वो मालूमात लेकर आता है ये एमआरएनए। उस पर जो कोड रहता है जो न्यूक्लियोटाइड की शक्ल में है वो इंफॉर्मेशन है दरअसल, और वो इंफॉर्मेशन ये बताती है कि किस तरह के प्रोटीन तैयार करते हैं, तैयार करना है। अब हम बात करते हैं ट्रिप्लेट कोडोन की। इससे पहले भी हमने देखा था। तो ये क्या है?
It is nothing but the code of each amino acid which contains 3 न्यूक्लियोटाइड. एक अमीनो एसिड में वो 3 न्यूक्लियोटाइड जो होता है, इट इज़ नोन एज ट्रिपलेट कोडोन. ये देखिए, ये एक अमीनो एसिड है, इसमें 3 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जो एक ग्रुप बना लेते हैं, और इट्स नथिंग बट ट्रिपलेट कोडोन. सो सिंपल. अब यहाँ पर देखिए, ये जो डायग्राम नज़र आ रही है ना, ये mRNA की है. इसमें तकरीबन 12 न्यूक्लियोटाइड हमको नज़र आ रहे हैं. अब ये 12 न्यूक्लियोटाइड अगर 3-3 का एक ग्रुप बना लेते हैं तो कितने ग्रुप तैयार हो जाएंगे? 4. तो ये यूँ कहिए कि 4 ट्रिपलेट कोडॉन तैयार हो गए. और इस तरह से हर mRNA पर हज़ारों की तादाद में ये ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं. समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रही हूँ? नाउ विल सी ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन. ये ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन क्या है? सबसे पहले ये जो डायग्राम है, ये देखिए, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ये mRNA है और इस mRNA पर ट्रिपलेट कोडोन है, और ये जो नज़र आ रहा है वो है राइबोसोम. तो ये जो tRNA है, दिस tRNA हैज़ एंटीकोडॉन. देखो, अब ये लफ्ज़ देखा, कोड्स एंड एंटीकोड. तो ये tRNA के पास क्या होता है? एंटीकोडॉन होता है. एंटीबायोटिक के लफ्ज़ मालूम है ना, मतलब कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमको एंटीबायोटिक देते हैं. एंटीबायोटिक मतलब वो जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने वाली दवाएं, एंटीबायोटिक. वैसे ही जो कोड होते हैं उसको डीकोड करने के लिए एंटीकोड होता है. किसके पास होता है? tRNA के पास होता है. तो अब हमने पहले से, इससे पहले देखा था कि ये पेयर कैसे होते हैं. अब हमारी आसानी के लिए, हमको समझने के लिए, कोडोन यानी यूँ समझिए कि एक पासवर्ड है. क्या है ये? पासवर्ड है जो mRNA किसके पास से लेकर आया है? DNA के पास से लेकर आया. कौन लेकर आया है? mRNA. किसके पास से लेकर आया है? DNA के पास से. तो ये जो कोडोन है, ये इट इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक अ पासवर्ड. और ये पासवर्ड को हमको क्या करना है? खोलना है. तो ये जो mRNA है, ये एक मैसेज लाया है, और ये मैसेज किसकी शक्ल में है? कोड की शक्ल में है. अब ये इस कोड को हमें डीकोड करना है, यानी इसको ओपन करना है. क्यों ओपन करना है भाई? फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि उसी में मालूमात छुपी हुई है. तो अब ये ओपन करने के लिए, डीकोड करने का काम हर एक को नहीं आता ना, हर काम. तो ये काम मखसूस एक पर्टिकुलर कोई कर सकता है, और वो कौन है? tRNA, ट्रांसफर RNA. वो डिकोड करने का काम करता है. तो ये जब डिकोड करता है, तो ये जो प्रोसेस है डिकोड करने का, इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं. व्हाट इट इज़ नोन एज? ट्रांसलेशन. तो हमने ट्रांसक्रिप्शन देखा, ट्रांसलेशन देखा. ट्रांसलेशन से जुड़ा ही होता है ट्रांसलोकेशन. तो एक्चुअली नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी, विल सी व्हाट ट्रांसलोकेशन इज़. ट्रांसलोकेशन के लफ्ज़ी मायने होते हैं जगह बदलना, चेंज द पोजीशन. तो राइबोसोम में एक ट्रिपलेट कोडोन में mRNA के पहले, राइबोसोम क्या करता है? एक ट्रिपलेट कोडोन में से mRNA के पहले सिरे से आखिरी सिरे तक अपनी जगह बदलते जाता है, ऐसे सरकता जाता है आज की. और ये जो आगे इस तरह से जो सरकता जाता है, इसी को क्या कहते हैं? ट्रांसलोकेशन कहते हैं. सो ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन तो कंप्लीट हो गया. वो आगे ऐसे बढ़ता चला गया, आगे सब ऐसे ऐसे 3-3 की कोड बनाता आगे चला गया वो. और जो मेन प्रोसेस है सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, वो तो हुआ ही नहीं है. तो एक्चुअली उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? उसके लिए ज़रूरत होती है, ये आखिरी प्रोसेस है प्रोटीन तैयार करने का. तो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के बाद में जो अमीनो एसिड जो बाहर आए हुए होते हैं ना, बाहर निकलते ट्रांसलेशन के प्रोसेस से, वो अमीनो एसिड अब एक्चुअली उनकी एक मखसूस चेन तैयार होना ज़रूरी है. क्योंकि प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन इज़ नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स चेन ऑफ द अमीनो एसिड. तो जो अमीनो एसिड ट्रांसलेशन के बाद तैयार होकर आए हैं, वो अमीनो एसिड क्या करेंगे? वो जुड़ते जाएंगे, एक दूसरे से बंधते जाएंगे. यानी उनको बांधना ज़रूरी है. तो अब ये बांधने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना. तो वो क्या होता है? ये काम कौन अंजाम देता है? पेप्टाइड बॉन्ड्स. तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के ज़रिए ये अमीनो एसिड जो है इनको बांधा जाता है.
और ये काम करने में इनकी मदद करता है आरएनए। देखिए हर एक का अपना काम है। आरएनए राइबोसोमल आरएनए ये काम करता है और इस तरह से बहुत सारे जो है वो अमीनो एसिड जुड़ जाते हैं, यकजा हो जाते हैं और चेन तैयार हो जाती है और ये जो चेन है फिर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में तैयार हो जाती है, तब्दील हो जाती है। सो दिस इज प्रोटीन synthesis. Here we will stop. We will stop our session here only. Thank you, students.